Good morning, Srividya. Good morning all. Good morning. आज संडे इसके लिए आप भी ऑरेंज और पीछे भी ऑरेंज है क्या? पता नहीं संडे का ऑरेंज से क्या लेना देना है। अरे बहुत लेना देना है। क्या लेना देना बताओ। कलर कॉम्बिनेशन। मॉर्निंग Okay, great है जी। Good morning. Good morning विजय भाई। Good morning सिंगला साहब। गुड मॉर्निंग Good morning खेमका गुड साहब। मॉर्निंग जी, कैसे हैं? ऐश चल रही है जी एकदम। गुड गुड, यही चाहिए। हाँ जी। अतुल वी शुड प्ले द गेम्स आप आज आप जो कहेंगे सो कह लेंगे हम। Hello, हाँ जी। हेलो, good morning to all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग। It's MP Khemka from the Food Doors, Calcutta. फ्रॉम फूड Calcutta. Yeah. Tough Wood Doors. फूड डोर्स, ओके। Tough Wood Doors. How many persons are participating? Right now I think there are 7 of us. I see. You are based in Mumbai or Delhi? Delhi. Okay. Hello, Mr. Singla. आई एम फ्रॉम पंचकुला, चंडीगढ़, हरियाणा। Wow. What is business? आई एम इनटू कंसल्टिंग बिजनेस। आई एम बेसिकली इनटू पोल्ट्री फार्मिंग कंसल्टिंग and real estate also. Real consulting. Yes. In India and abroad, Africa, Uganda. Consulting, financial consulting or technical consulting? Technical. Means somebody has to set up a poultry farming automation, basically into automation with European technology. So that's what I do. Are you consulting any builder in Chandigarh, Mohali? Yes, yes. Which one? You name, I will say yes or no. I know. GLPL? No. GLPL is Kulwant Singh, no. No, GLPL is Okay sir, so good morning everybody. गुड मॉर्निंग Today the session is called Chopal, experience laziness. Right? So we will not talk any business today. So no builders and no consulting. Okay. Let us get to explore the other side of each one of us. And this can be anything. Maybe we could, so I was thinking today morning कि जी क्या किया जा सकता है. So maybe we could start with one question कि जी आप कहाँ पैदा हुए थे? How were your early days in life? So each one of us takes some time, shares that.
I will start with. ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंचती है? मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है जी, करें. Okay. My name is A.K. Singla. I started from a small township in Punjab that is called Nabha, Acha. district Patiala, Okay. in Patiala. And Yeah. I did my schooling, and then I shifted to Chandigarh for education. All right. I'm basically, I did a post diploma with a college Swiss collaboration. That is Okay. a Indo-Swiss training center. Uh-huh. Okay, that is giving you about the manufacturing technology, what you can do. No matter it is a food industry or a engineering industry or a scientific or anything. So that's what given me a leverage to start with. I started my career with Indian Space Research, ISRO. And I center? served there for ISRO. Which ISRO center? in Mohali. Mohali. Okay. I was there for 22 years and touched the highest levels of technology. Highest level means the chips manufacturing used for the satellite technology is the highest level of technology. Singla ji, can I interrupt? Yes. बचपन के बारे में पूछ रहे थे कि बचपन के दिन याद करो. बचपन के दिन में मैंने बताया I started with the बचपन की शरारतें. ऐसा है कि हमारी गरारी जो है ना वो ऐसी जगह अटक गई है जहाँ के जो वापस रिवाइंड होती नहीं है. बचपन की शरारतें क्या करा था बचपन में? ऐसा था when I was अच्छा चलो to make things चीजें आसान करने के लिए भी हो ना, थोड़ा यूजफुल भी हो ना. No useful. एक No काम करते हैं. usefulness. Is not about telling. एक काम करते हैं, इसको आसान करने के लिए आज हम अंग्रेजी में बात ही नहीं करेंगे. आप हिंदी में बात कर लो, पंजाबी में बात कर लो, गुजराती में बात कर लो, चलेगा. मिस्टर पुरी. हाँ जी. मिस्टर पुरी. हाँ जी. जब आपने ये टॉपिक छेड़ा अदर देन बिजनेस, हाँ जी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अदर देन बिजनेस में जैसे मान लीजिए आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई सोशल काम कर रहे हो या फिर कोई डिवोशनल, कोई स्पिरिचुअल. मोस्ट वेलकम. थोड़ा बहुत बना है ना, जैसे तो एक काम करते ना कि व्हाट इज एक्सपीरियंस. मैं इसमें ना एक ऐड करना चाहूंगा. हम जो कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे बिजनेस निकल पाएंगे. बिकॉज कैसे निकल पाएंगे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, मैं भी ग्लोबली ट्रेवल्ड हूँ, तो उसमें इतना कुछ है अवेलेबल डिस्कशन के लिए. बिजनेस उसी में से बिजनेस लाएगा. ठीक है. अब जैसे मैंने 100 से ज्यादा प्लेसेस इंटरनेशनल ट्रेवल की, उससे क्या है कि इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो आपके पास क्या कर सकते हैं उसमें से ही निकल आएगा. एक काम करते हैं, कहने का पर्पस ये है कि एक काम करते हैं, यूजफुल बना सकते हैं. बिल्कुल यूजफुल बना सकते हैं. एक काम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आप केवल 1-1 मिनट लीजिए, ये बताइए कि जी आपका नाम क्या है, आपका बचपन कहाँ बीता और आजकल आप कहाँ पर बेस्ड हैं. ठीक है, फेयर इनफ. हाँ, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो, कई बार बीच में अटक जाती है बात. बिल्कुल. अब जैसे मैं ही बता रहा था, मैं नाभा है, तो आपने बता दिया नाभा में थे, बचपन हो गया, आपका अपॉर्चुनिटी निकल गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. चंडीगढ़ आ गया, तो चंडीगढ़ में आके मैंने यहाँ पे जॉब की इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च. ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है. जब आप जॉब में आ गए ना, तो आपका बचपन खत्म हो गया. ओके, थैंक यू. तो बचपन तो यही है. एक हाँ जी, अब नेक्स्ट में वापस आएंगे सिंगला साहब आपके पास. ठीक है जी. ओके. राइट. भुवनेश भाई. Good morning, everyone. Bhuvanesh Thakur from Ahmedabad. हाँ जी. We manufacture home automation solutions. No. We don't want to hear what you manufacture. We want to hear आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा बीता. मेरा बचपन तो बहुत सारी जगह पे बीता है, क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे. ठीक है जी. He was magistrate. So पैदा कहाँ हुए थे आप? My birthplace is Mehsana. Okay. And I have not stayed in one town for more than 3 years, throughout my school life. ठीक है जी. So and since 9th standard onwards, I was in hostel,
because the schools where my father's job was were not very good. Okay. Then I passed my 12th standard from Rajkot. Okay. And I studied my engineering in LD College of Engineering, Ahmedabad. Fantastic. After that, I joined NTPC, National Thermal Power Corporation in Delhi. ठीक है, NTPC पर हम बाद में आएंगे, बचपन बीत गया आपका, बहुत बढ़िया बीता। विजय भाई मेरा बचपन 55 से बॉम्बे में बीता। ठीक है, ग्रेट है। तो बचपन से 55 तक का बॉम्बे में थे। फैंटास्टिक। नेक्स्ट कम्स धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा। Hi. Yes, yes, here. हाँ। I better be here. सॉरी। हाँ। मैंने बोला मैं इधर ही हूँ यार। हाँ। अच्छा, hi all, this is Dharmishta here from Mumbai, born and brought up in Vileparle, and my schooling has been done in Andheri. हमारे पड़ोसी निकले तो। Churchgate. धर्मिष्ठा भी ना, हमारे पड़ोसी निकले, बताए नहीं। पार्ला में कहाँ? चलो आप बता देते हैं। आज का दिन इसीलिए रखा है ताकि वो चीजें बताई जाए जो अभी तक बताई नहीं है। कहाँ थे पार्ला में? पार्ला वेस्ट। अच्छा, कहाँ पर वो तो बताओ। हस्तीराज नहीं सामने। अच्छा, हस्तीराज के सामने। अच्छा, आ जाओ, आज खाने के लिए आ जाती हूँ। क्या वंदना बिल्डिंग में? वंदना। શું વાત કરો છો? કુસુમબેન, દિલીપ, અનિલ બધા મારા જૂના પડોશી। हाँ हाँ, खबर છે, खबर છે। खबर છે, શું વાત છે? तो जिन लोगों को नहीं पता, बॉम्बे की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। गुज्जू गुज्जू गुज्जू। बॉम्बे की नेशनल लैंग्वेज गुजराती है। ओके, चलो ग्रेट है। जतिन। Hi, good morning everybody. हाँ जी। Good morning everybody. Am I audible? Yeah, you're audible. Everybody else is muted. Okay, okay. जतिन मेहता, as अपना अतुल ने मेरा नाम बता दिया है। Born brought up in Delhi, more or less in Janakpuri area. मेरा बचपन I think decent बचपन था, कुछ special नहीं था बचपन में, since my father was working as a dairy engineer with Delhi Milk Scheme. ये उनकी लास्ट पोस्टिंग थी जो मैं इस घर में हूं, जिसमें मैं आज भी हूं। उससे पहले we've been to n number of places जो मुझे प्रैक्टिकली याद नहीं है because I was infant. तो मेरा more or less इसी घर में नर्सरी स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया और आज you can see me, I'm 45, I'm इधर ही हूँ। I've started my business here और वही चल रहा है। ग्रेट है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ये मेहता पंजाबी मेहता है, गुजराती मेहता नहीं है। जबकि मैंने गुजरात में और मुंबई में काफी काम किया है, काफी एग्जीबिशंस रेगुलर किए हैं। स्पेशली मुंबई, इट्स लाइक मेरा साल में करीब आप मानो 6 महीने में मुंबई। चलो ठीक है, बिजनेस पे बाद में आएंगे। मनीष। जतिन भाई मुंबई आओ तो मर जाओ। अरे डन भाई, डन डन। गुजराती एक्चुअली बहुत कम आती है जी मेरे को। अरे हमें शिकवाड़ी दे, तू टेंशन ना लियो। डन 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 डन। मनीष। जी सर, क्या बताना, बताओ तो सर एक बार फिर से। ये बताना है कि आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ बीता। क्या बात है। मेरा बचपन सर, माई सेल्फ मनीष, और मेरा बचपन किताब में और मस्ती करते हुए बीता सर। और रहा बात लोकेशन का, तो इट वाज इन बिहार। बिहार में कौन जगह? बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार शरीफ। ओके, ग्रेट है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि सबसे शरीफ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बिहार शरीफ से आता हूँ। बिहार शरीफ से आते हो? हाँ जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और शरीफ आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, मिथिलेश झा जी। जी। झा साहब, तनिक बताइए कहाँ से हैं आप? नमस्ते भाई, मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर बिहार के ईस्ट में है, बंगाल बॉर्डर के पास है, और वहीं पढ़ाई करी है। 95 में दिल्ली आए हूँ और 95 से आज 25 साल हो गए दिल्ली में ही हूँ। पर बिहार में पढ़ाई कैसे कर लिए? वो तो बिहार वाले तो सारे बाहर ही जाकर पढ़ते हैं। नहीं, बिहार में पढ़ते वहाँ है, काम बाहर करते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा
कि बीच में ना बात हो रही थी, आई थिंक इनके साथ, मिथिलेश जी के साथ ही बात हो रही थी। जब आप पंजाब वाली साइड पर होते हैं ना, तो भाषा बड़ी कड़क होती है। तो जैसे 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 आप गंगा के नीचे उतरते जाते हैं, भाषा आपकी मधुर होती जाती है। आपकी जो बोलने का तरीका है उसी में लय आ जाती है, लचक आ जाती है। जैसे आपने मिथिलेश जी की भाषा में सुना होगा, एकदम मीठी सी गूते खाती हुई सी भाषा है। थैंक यू मिथिलेश जी। नेक्स्ट आगे खेमका साहब। मैं कलकत्ता से हूँ, बचपन कलकत्ता में बीता है, और हम लोग मैंने पहले कॉस्ट अकाउंटेंसी की, फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप की, और अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, टिम्बर डोर का बिजनेस कर रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ पर हैं? अभी कलकत्ता में ही हूँ। अच्छा, कलकत्ता में। अच्छा, ठीक है। अपनी फैक्ट्री है राजस्थान में, और अपनी सप्लाई है वो मुंबई और दिल्ली में। तो फैमिली ओरिजिनली कहाँ से हैं? हम ओरिजिनली राजस्थान के हैं, लेकिन सेटल्ड इन कलकत्ता फ्रॉम सिंस लॉन्ग 60 इयर्स। हाँ, तो कलकत्ता में तो मारवाड़ी बहुत है ना, जिस तरह गुजरात के बस वही एग्जैक्टली। जिस तरह बॉम्बे की नेशनल लैंग्वेज जो है वो गुजराती है, कलकत्ता की बैकबोन जो है वो मारवाड़ी है। हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस पूरा मारवाड़ी होल्ड है। ठीक है। एक प्रश्न पर हम वापस आएंगे कि जी ऐसा क्या है जिसके कारण कि जी कलकत्ता की इकोनॉमी मारवाड़ियों के हाथ में, इस पे हम वापस आते हैं। एक बार जरा सबकी इंट्रोडक्शन ले लें। ठीक है जी। राजेश बुद्धराज। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं पंजाबी हैगा। कोई गल नहीं। हाँ जी, मैं पंजाबों निकल गया, पंजाबी नहीं निकलती अंदरों। मेरी क्रिएशन हुई सी सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली। Wow. That's where I was created by my parents. Most of them, they were grown on the trees. You were the only one created. तो बचपन मेरा सरोजनी नगर में था। That's where पैदा हुए थे। इनिशियल इयर्स की फाउंडेशन में। अच्छा, सरोजनी नगर दिल्ली में है बाय द वे। दिल्ली में। हाँ जी, हाँ, मैंने बताया दिल्ली में। अच्छा, सॉरी, मैंने सुना नहीं। इट इज अ ह्यूज गवर्नमेंट कॉलोनी, अब टूट रही है। दे आर गोइंग टू मेक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं, तो वो पुराना सरोजनी नगर खत्म हो जाएगा। तो आप अपने घर की ईंट उठाने गए कि नहीं गए अभी तक? नहीं, अभी तक वो मेरी बिल्डिंग टूटी नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि जब वो इसमें बर्लिन में द वॉल ऑफ बर्लिन वाज ब्रॉट डाउन, people have still kept these stones from that piece, parts of that wall with them. Good idea, तो मे बी जब मेरा वो घर टूट रहा होगा, ईंट उठा लाऊंगा। I'm sure it will be उसकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। जिस तरह अभी हम इसकी जतिन की बात में सुन रहे थे ना कि जी नर्सरी से अभी तक वहीं पर हूँ। He can smell, he can live his father there right now. I know. अब बचपन में शुरुआत हुई एक गवर्नमेंट स्कूल में थी, बट मेरी ग्रैंडमदर को पैशन था कि मेरे जो पोते हैं ये इंग्लिश स्कूल में जाएंगे। मैं बड़ा भाई और मैं, छोटी बहन तो बाद में आई। तो फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल दिल्ली में वन ऑफ द टॉप स्कूल्स होते थे, को एजुकेशनल स्कूल, लड़कियां भी होती थी, बॉयज स्कूल। ये सबसे बड़ी बात की, लड़कियां भी होती थी। हर एक क्लास में होती थी। एंड मैं और मेरा भाई फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में पढ़े, और वहां के भी कई इंटरेस्टिंग चीजें याद है। मेरा ब्रदर थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप, थोड़ा चुप बंदा होता था। उसकी क्लास में एक लड़का था रायना, उसने एक बार उसको ना ज्यादा मारा, तो पता नहीं ब्रेक में कुछ पंगा हुआ था, मारा। तो कितने मारने को आप ज्यादा बोलते हो? हाँ, कितने मारने को आप ज्यादा बोलते हो? तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार, मेरे भाई को मैं अपना आइडल मानता था, आज भी मानता हूँ। तो उसको मारा इसने, रायना उसका नाम था। तो मैंने ब्रेक में जाके, 2 साल छोटा था, मैंने उसको ऐसा मुक्का मारा कि उसका एक दांत तोड़ दिया मैंने कहा तूने खबरदार मेरे भाई को हाथ लगाया। और भाई के साथ और भी बड़े मजे होते थे। हम डीटीसी बसों में जाते थे स्कूल, तो कई बार हम वो कुछ 5 पैसे होते थे हमारी टिकट, वो अगर भाई ने नहीं दिए
तो मैं तो फिर उसको ब्लैकमेल शुरू कर देता था, भाई देख मैं घर जाके बता दूंगा मम्मी को। तो हम रास्ते पैदल चल रहे आ रहे थे, रास्ते में वो बर्फ का गोला और उसके ऊपर वो जो जूस डालते हैं जैसे काला खट्टा बॉम्बे में होता है, तो मैं कहता था भाई अब जो तूने पैसे बचाए हैं वो शेयर कर ले मेरे साथ, वरना मैं जाके बता दूंगा। तो अपनी पॉकेट मनी तो खाली, उससे भी पैसे ऐंठता था मैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, एक उसको ना एक बार गॉगल्स लेके दी पेरेंट्स ने और उससे टूट गई गलती से। अब वो कैसे बताए कि टूट गई? उसने एक ट्रंक था उसके सारे कपड़ों के नीचे छुपा दी। Now, as his bad luck would have it, मेरी नजर पड़ गई उस पे कि इसकी तो गॉगल्स टूट गई है। अगले 4 साल मैंने उसको ब्लैकमेल करा कि भाई मैं वो वाली गल दस दा, वो वाली बात बता दूं। तो 4 साल तक उसकी पॉकेट मनी स्कूल में जो वो ऑरेंज आइसक्रीम चूसने वाली होती थी, लगे रहते थे उसको चूसते रहते थे टिल एंड में वो बर्फ निकल आती थी तो चूसना। तो वो भी खाता था, उसका शेयर मैं भी खींच के खाता था। बट चाइल्डहुड वाज फन। आई रिमेम्बर बारिश होती थी जब, तो गर्मी के शुरू में पित्त निकल आती थी। पेरेंट्स कहते जाओ बच्चों बाहर, और वो चड्डियां डाल के बाहर निकल जाना, बारिश में खेलना, नालियों में पानी भर जाता था उसमें उछल कूदना, वो नाव बनाना। आप नाव बनाई होगी आपने, कागज की नाव, सबने बनाई है। कागज की नाव बना के उसके पीछे भागना। क्या बचपन वाज लाइक एन अमेजिंग थिंग। सरोजनी नगर में बचपन जो था अनइमेजिनेबल। हमने क्या क्या नहीं खेला, लंबी घोड़ी, खो खो, वो टेनिस बॉल से क्रिकेट, और विकेट कौन सी होती थी हमारा 6 फुट बाय 5 फुट का जो सीढ़ियां होती थी ऊपर चढ़ रही होती थी फर्स्ट फ्लोर, वो विकेट होती थी, इतनी बड़ी विकेट। एंड इमेजिन क्रिकेट खेलने के लिए यू हैड टू गार्ड सच अ बिग विकेट। और वो किरमिच की बॉल कहते थे, टेनिस की बॉल उसको किरमिच की बॉल कहते थे, उससे खेलना। तो बचपन के अगर मैं शुरू हो जाऊंगा तो आई थिंक अतुल बाकी लोग के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मस्ती थी, चाइल्डहुड वाज रियल फन। एंड आई थिंक फाउंडेशन लाइफ की जो बनी, दैट वाज रियली द चाइल्डहुड जो। एंड you know, I must share another one thing which I till today acknowledge. My father was in government service. He was at very influential positions. Now, आजकल लोग गवर्नमेंट में होते हैं, कई लोग जो होते हैं, they make a lot of money on the side if you're on the influential position. Some do, some don't. My father taught me integrity. कि you know, वो अपनी उस तनख्वाह में उन्होंने हमें इंग्लिश स्कूल्स में भेजा, मुझे आईआईटी खड़गपुर भेजा और मेरे ब्रदर को आईएम अहमदाबाद में भेजा। You know, जो टॉप स्कूल्स एंड टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री आउट ऑफ जस्ट हिज मीगर इनकम। एंड आई नो वो हमें जो फीस भेजते थे या हमारे हॉस्टल के खर्चे भेजते थे, घर में आई रिमेम्बर मदर में भी एक रोटी से काम चला लेती थी। बट देयर थिंग वाज कि बच्चे हमने पैदा करे अपनी मर्जी से, एंड देयरफॉर हमारी जिम्मेदारी है इनको कुछ जिंदगी में बनाना। तो यू नो, द बेस्ट ऑफ स्कूल, द बेस्ट ऑफ कॉलेज, एंड इसको मैं आज तक एक्नॉलेज करता हूँ कि माय पेरेंट्स हैव मेड सो मच ऑफ कंट्रीब्यूशन इन मी, जिसको मैं जितना भी करूं भुला नहीं सकता हूं। थैंक यू we'll move on to संजीव जी। Hi sir, good morning everyone. Good morning सर। पहले ये बता देना बाल कैसे कटाए आपने? सर सुबह 7:30 बजे चले जाओ मार्केट में, कुछ दुकानें खुली होती हैं। अच्छा, सेटिंग कर लो, अगले दिन आना है भाई। अच्छा जी, वो आपके स्लॉट बुक करके रखता है वो। हमारे तो नहीं खुली कोई। चलो ग्रेट है जी। आपका बचपन कैसा, कहाँ? मैं ऐसा है कि आप उगे थे, क्रिएट किए गए थे? ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। My father was a central government employee and I was born in Jaipur, Rajasthan. He was posted over there at the time. 3 years we were in Jaipur and then we were to Tripura. After that we were in Delhi. दिल्ली में काफी टाइम सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई हुई थी। सेंट्रल स्कूल दिल्ली कैंट का हूँ। आप अतुल, आप भी सेंट्रल स्कूल से हो, केंद्रीय विद्यालय? नहीं जी।
मैं भी बताता हूँ कहानी अब। क्योंकि मैं हूँ सेंट्रल स्कूल का। अच्छा, आप हो? अच्छा, बढ़िया। कौन से स्कूल में थे, कौन से ब्रांच में? सर 10th तक तो जनकपुरी में था, उसके बाद टैगोर गार्डन। अच्छा, कौन से ईयर में थे? 92 पास आउट हूँ 12th में से, और 90 10th। अच्छा अच्छा, चल मैं तो 74 पास आउट हूँ। 66 में मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा, उसके बाद then we were in Delhi and then I joined, my father got transferred in UP, first to Raebareli, then Lucknow and Gonda, and I joined Merchant Navy from, I was studying in Lucknow University at that time. I was in Navy for 7 years. I did best of the things. I mean, I was in foreign company within 3 years of my training and this thing. I worked in foreign companies for 4 years. और उसके बाद, I mean, I left Navy abruptly because of mainly 2 reasons. One, for medical problem for myself, and second, my mother was also having a paralytic attack वगैरह हुआ था. So I started my second career from there. I had 4 careers. With God's grace, all the 4 careers have been successful. That's what I think so. Then और आप अपने भाई की चुस्की लेते थे कि नहीं? My elder brother was 7 years elder to me. He is still 7 years elder to me. वो आज भी? अच्छा। आज आज भी वो गैप पूरा नहीं होगा। वो गैप। He was in IIT Delhi, तो हम तो उस टाइम 4th क्लास में होते थे। अच्छा, तो उसके बाद आफ्टर मर्चेंट नेवी आई डिड, मतलब वो वहाँ मर्चेंट नेवी में तो 19 साल में जाया करते थे उस टाइम। ग्रेजुएशन की कंप्लीट की ना कुछ था। So I came back and did all the 3 years of graduation together, and then I did my marketing diploma and the computers. Rajiv Gandhi ने computers वगैरह start किए थे। 1984 I started my computers career. 5 years later I started my business 26 years back. And being in Apple business, Apple खत्म हो गया जी, कैरियर खत्म हो गया, बचपन में नहीं आता है कैरियर। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। श्रीविद्या। हाँ जी। Hi, I am Srividya. I was born and brought up in Mumbai only. बॉम्बे में ही पैदा हुई हूँ। शक्ल दिखाओ पहले। हाँ? शक्ल दिखाओ पहले। शक्ल दिखाओ? एक मिनट। मुंह दिखाई के पैसे मिलेंगे। मुंह दिखाई के। 2 सेकंड। आपको थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, तो मैं आऊंगी कैमरे में। तो तब तक हम फिर योगी के पास जाते हैं। योगी आ गई। आ गई? आ गई। ये देखो। मैं ना कैमरा में बिना मेकअप के आती नहीं। कोई बात नहीं। Okay, born and brought up in Mumbai always. I was in Malad. એટલે મુંબઈમાં છું અને મુંબઈમાં જ રહું છું, બીજું શું કહું? And from childhood I have this, I always wanted to not work for anybody. 9 to 5 कभी नहीं करना था. I always wanted to do something on my own. So this is up. I'm still doing something on my own. तो बचपन क्या था, किस स्कूल में गए? मैं कार्मेल ऑफ सेंट जोसेफ में थी। ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जब मैंने कोई मस्ती नहीं की। आपके स्कूल में लड़के होते थे कि नहीं? नहीं कि वो अरे यार, हाउ सैड। नहीं, हमारा स्कूल बहुत मजा आता था। हमारा स्कूल तो फिर वो गेट के बाहर तो लड़के खड़े रहते होंगे? गेट के बाहर नहीं, दीवार के उस तरफ। लाइक कार्मेल उधर था और सेंट एंस उधर था। तो जैसे ही रिसर्च होता था तो सेंट एंस के लड़के आते थे ना कार्मेल के दीवार पे, तो और मैं सब चुगली किया करती थी कि ये एंड्रिया का फ्रेंड है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। मैं वो चुगली करने की बड़ी आदत थी कभी, और टीचर को जाके बोल देती थी कि वो लड़के के साथ वो बात कर रही थी, और बड़ी धुलाई होती थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे बहुत मार पड़ती थी ये सब लड़कियों से कि यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, यू डोंट वांट अदर्स टू कीप अ बॉयफ्रेंड।
So when did you get your first boyfriend? First boyfriend, actually, I don't know. Maybe Gauri will object because वो circus में आया था. Like तब से वो मेरा boyfriend है. दिल्ली का है वो. Okay. फिरोज क्या बोलते हैं उसको, उसमें उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, सॉरी. शाहरुख खान है. वैसे एक और खास बात बताऊं, मैंने ऐसे इंसान से इसलिए शादी करी क्योंकि उसका इनिशियल और शाहरुख का इनिशियल सेम था. क्या? I wanted to be called SRK. That's why I got married to a person whose name has SRK. क्या बात है. Fantastic. योगी? योगी? हेलो. हाँ जी. मुंह दिखाई नहीं हो रही. इस समय तो योगी चल रहा है इंडिया में. आगे आगे आगे. हाँ जी. तुमने मेरा डिसेबल करके रखा था क्या तू? ना 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 ना. गुड गुड गुड. हाँ जी. So happy morning all the champions of e-growth. Happy morning. So I'm basically from Aurangabad. I studied in Aurangabad. I did my engineering and MBA. 1995 I came to Mumbai. I had joined as a management trainee in the central government company. Not interested in management trainee in post college. स्कूल में क्या हुआ? पहली गर्लफ्रेंड कहाँ मिली कैसे मिली? किसकी चुस्की ली, भाई की चुस्की ली कि नहीं ली? बहन के लिए क्या क्या किया? These are interesting question ना. कहाँ चले गए? पैदा जब हुए थे तब थोड़ा नौकर बनने के लिए पैदा हुए थे. तो वो तो बात सही है. बट क्या है, अभी बाजू में बीवी बैठी है तो उसके सामने सब रिवील करना है तो एक तो बात नहीं. कोई बात नहीं, बीवी को मैनेज कर लेंगे. बीवी को जरा लाना फ्रेम के अंदर. नहीं अभी वो क्या है, बाजू में बैठी है, वो बोली मेरा अभी मेकअप नहीं है तो इसके लिए नहीं आएगी. और वो मेरी बीवी का दूसरा ऐसा है कि अतुल की क्लासमेट हो चुकी है वो. हम लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे. हाँ वही बोला मैंने, तो इसलिए मैं दोनों तरफ से मैं लटक जाऊंगा फिर, इधर से भी और उधर से. चलो ग्रेट है. विदा हो गई. So my schooling was awesome. So schooling, I came to know more about I would say the sexual matters when I was in 4th standard. So जो बिगड़े हुए लोग थे हमारे इधर क्लास में, so they used to bring all those things. So तब से हमारी मतलब पहली गर्लफ्रेंड हम लोग बोल सकते थे कि 4th में हुई थी हमारी. वो ज्यादातर लोगों की वही 4th 5th में ही हुई होगी. 10 साल की उम्र के आसपास कहानी शुरू हो गई होगी. हाँ, absolutely right. So that was the start of the things. Male female relationships, boyfriend चाहिए, girlfriend चाहिए, that was one thing. But after 4th standard आगे कुछ नहीं हुआ till you can see 11th 12th में वापस I got one friend जिसके लिए infatuation हुआ था, और फिर हम लोग 12th साइंस के प्रैक्टिकल करने के बजाय दूसरे प्रैक्टिकल चालू कर दिए उधर, और जिसकी वजह से फिर मेडिकल नसीब हुआ ना इंजीनियरिंग. तो बोलते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. क्या करें, जो सब पढ़ाई करने वाले लोग थे तो इधर उधर चले गए, अभी क्या करेंगे. Then I took admission to a private engineering college क्योंकि मेरा मेडिकल 86 पे लटक गया था. So नंबर तो नहीं लगा उधर. अभी वाइफ किचन में गई क्या? हाँ, आप स्टोरी बता रहे, वाइफ किचन में गई क्या अभी? दूसरा प्रैक्टिकल शेयर कर देंगे. विजय भाई आपको तो सब पता है, you know my wife also, so क्यों जख्म पे नमक छिड़क रहे हो? बच्चन जी आपके पास बहुत अच्छा चांस है साइड बिजनेस का. ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो सबको. ब्लैकमेल. ये बिजनेस वाली बात नहीं है, ये रिलेशनशिप्स वाली बात है. आई एम एन एक्सपर्ट ब्लैकमेलर अतुल, सिखा दूंगा कैसे करना है. हाँ प्लीज. तो आप थर्सडे को आ रहे हो ना आप आज इस बार?
So by the way, Rajesh ji is going to be a speaker this week, and he will be speaking on power from within. Oh, I thought how to blackmail. Yeah. Tuesday morning. So आज समझ में आया कि जो वो पावर जो कहते हैं वो कहाँ से आई है, कैसे बिल्ड की है इन्होंने over the years. Yes. And Sridhya ma'am is also good from power from within. She does a lot of stuff. And along with Viral Manik, I have experienced one of her programs. Am I right? Thank you very much. आपने मुझे बोला, मुझे वो लगा. Happy. क्या बात है. Good. चलो great. So Atul, so engineering, like you did engineering, AT-KT लेते mathematics, applied mechanics, रोते किस तरह से तो हम लोग engineering pass out हो गए. तो जो लोग इंजीनियर नहीं हैं उनको बता दें कि जी AT-KT जो होती है allowed to keep term, ये बहुत बड़ी मीन्स दिस इज a bigger achievement than getting the degree itself. तो और जनरली क्या होता है कि जी 9 या 10 मार्क्स होते हैं ग्रेस के, वो सारे के सारे कैसे यूज करने हैं, दैट इज अ मैनेजमेंट साइंस. हाँ जी. राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं. अतुल जी, आपकी कभी नो राइटिंग के भी मार्क्स मिल जाते हैं. आपकी तो गटरी खोलो जो छोटी सी पोटली है. खोलते हैं अभी योगी खत्म ही नहीं कर रहे. हाँ. योगी जी के पास तो बहुत पोटली है ना, वो तो डिजिटल वाले हैं ना. तो बेसिकली अभी क्या बताएं और कितना बताऊं वो भी समझ नहीं रहा है, कितना डेप्थ तक बताऊं क्योंकि स्कोप भी बड़ा है. मैं उतना ही ब्लैकमेल करूंगी जितना आप दे सकोगे. देखो क्या है, जो भी अभी अपने लोग हैं ना, ये सब में से मैं सबसे ज्यादा बदमाश हूँ क्योंकि नाम मेरा योगी है और पूरा मटेरियल योगी हूँ मैं. ऐसा सारे के सारे यहाँ पर भोगी हैं, कोई भुक्त भोगी है या कोई भोगी है, सबकी हालत हुई पड़ी है. हाँ, मगर क्या है, नाम से तो नहीं है ना कोई, तो मेरा नाम anyways, so things have started. So my first affair, you would say, the girl which I liked most was when I was a management trainee at RCF. So very good. तो शादी उसके साथ हुई या हो गई थी? नहीं, उसके साथ एक्चुअली वो साउथ इंडियन थी और शी वाज अ इंटर्न. मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था और वो इंटर्न थी उधर, जहाँ पे मेरी और उसकी मुलाकात हुई थी. अच्छा. अरे हाँ. एंड ये जो अफेयर बता रहे हो ना, ये लाइव फेसबुक लाइव चल रही है आपकी, ये देखो तुमने बड़ा तगड़ा प्लान किया हुआ है. ये तो बाद में क्लास लेंगे, ये डिजिटल क्लास तो बाद में लेंगे, हम इनकी क्लास लेंगे बाद में. लाइव ऑन फेसबुक. रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे आने वाला है क्या? यूट्यूब पे चल रहा है, आने वाला नहीं है. नो, आई एम वेरी गुड सर. यूट्यूब पे आने वाला है, फेसबुक पे चल रहा है. नहीं चलने तो फेसबुक पे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. सो डोंट वरी. नाम लोगे तो बदनाम हो जाएगी. घर में मार पड़ेगी, ये ध्यान रखना. अरे नहीं, लड़की बदनाम हो जाएगी यार. नहीं. हाँ, देयर यू आर दैट. मैं तो बदनाम हूँ पहले से, तो मुझे कोई इशू नहीं है, तो किसी और को क्यों बदनाम करे. हाँ. Anyways, लेकिन उसको पता है कि जी you were attracted towards her, पता चले कि 50% दिखानी. She knew very well also. Later she wanted me to take action, but हिम्मत नहीं हुई मेरी. हाँ, fantastic. मतलब आईटीपी नहीं था, आईटीपी प्रोग्राम्स नहीं थे. इसको क्या कहते हैं, योगी पट्टू. 50% कंफर्मेशन. हम तो तैयार थे, सामने वाले को पता ही नहीं था. बिल्कुल. चलो ग्रेट है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट के पास चलते हैं. शिवम मेहरोत्रा आए हैं. हमने योगी देख लिया, आज देख लेते हैं. सॉलिड नाम है योगी, शिवम. तो भगवान हो रहे सब. बिल्कुल, सब भगवान है. शिवम और अतुलपुरी जी पता नहीं क्या क्या खोद के पूछ रहे हैं, वो भी लाइव सेशन में. मैंने फोटो दिखा दो यार. आप खुद बता रहे हैं. सर अभी एक्चुअली आई जस्ट वोक अप, कल थोड़ा लेट था, बाहर था किसी एसेंशियल सर्विसेज की वजह से, है ना. तो आई एम शिवम एवरीबॉडी एंड शक्ल दिखाइए अपनी वीडियो. अभी सो के उठा हूँ. कोई बात नहीं, सब सो कर ही उठे हैं. एक सेकंड.
कुछ लोग आराम से सोकर उठे हैं, कुछ लोगों की धुलाई हो चुकी है। ये भी सही है। वेरी गुड। हाँ जी। जहाँ पे रंगों और धुलाई की बात आती है ना, धुलाई की बात कर रहे हैं, तो we cater your धुलाई of all your clothes basically. We are into e-commerce based dry cleaning and laundry solution in NCR. आज का टॉपिक है आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ बीता? अच्छा, उसपे बचपन कैसा बीता? बचपन बहुत अच्छा बीता एक्चुअली, एंड मेरे हॉस्टल लाइफ को काफी एंजॉय करा है अपनी, द बेस्ट पार्ट। बचपन कहाँ था? एंड बचपन मेरा हॉस्टल लाइफ था मथुरा में। ओके। एंड दैट वाज वेरी नाइस, और काफी मजेदार था, राइट। और बाकी तो चीजें, मेरा आई एम फ्रॉम बेसिकली कन्नौज। कन्नौज हाँ जी, तो इत्र की कैपिटल है ना? इत्र की। हेलो, वो इतर लगाने चले गए क्या? कैमरा में दिखता है ना, इसके लिए। हाँ, स्मेल भी आती है। हाँ सही है। ठीक है, आते हैं तो बात करते हैं। तो मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने, अतुलपुरी। नहीं, हमने नहीं सुना। शाहरुख के बाद आपका ही नाम सुना है। दोबारा बताओ। मेरा नाम अतुलपुरी है, और मेरा नाम जो था वो मेरे दादाजी ने दिया था। और तो मैं ये मानता हूँ कि जी उनको मेरे पैदा होने से पता था कि जी मैं किस प्रकार का इंसान होने वाला हूँ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो उन्होंने नाम रख दिया अतुल। लेकिन उन्होंने बुलाया कभी नहीं अतुल, मेरे को हमेशा बुलाते थे अतल। अतल अतल अटल वाजपेयी। वो अटल थे, ये अतल है। मेरा पंजाबी में अतुल को अतल ही बुलाते हैं। हाँ पंजाबी, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। तो शिवम आगे वापस। शिवम, यस, कन्नौज की सैर कराइए। अतुल जी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अतुल जी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज। मेरे रेट से प्रॉब्लम है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ। आई एम नॉट फाइंडिंग मच इंटरेस्ट, प्लीज। ठीक है सर, नो वरीज सर, थैंक यू। मैं आपको कन्नौज की सैर करवाता हूँ, अभी सबको इंटरेस्ट आता है बढ़िया वाला। राइट, तो चलिए मैं आपको 5 मिनट में डिस्क्राइब करता हूँ चीजें। एंड कन्नौज इज अ हिस्टोरिकल प्लेस बेसिकली, जहाँ जो मेरा नेटिव प्लेस है। एंड हिस्टोरिकल प्लेस के साथ में सबसे बढ़िया कन्नौज की खासियत ये है, जिस समय आप कन्नौज के अंदर ट्रेन से या गाड़ी से अंदर जाएंगे और आपको एक अजीब सी स्मेल आनी प्रारंभ हो जाएगी शहर के अंदर घुसते ही, शहर के एरिया में स्पेशली, क्योंकि वहां पर हर 5वें घर के अंदर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई ना कोई स्मॉल स्केल यूनिट है, कहीं गुलाब का इत्र बन रहा होगा, कहीं शमामा बन रहा होगा, कहीं बेला चल रहा होगा, कहीं मेहंदी का कुछ बन रहा होगा, कहीं मिट्टी का इत्र बन रहा होगा, है ना। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बन रही होंगी, और हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको बनता हुआ मिल जाएगा, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हिस्टोरिकल जगह होने की वजह से कन्नौज को आप किसी भी घर में जाओगे ना, 80% घरों की खासियत ये है कि आप उस घर में घुसोगे, अगर उस घर के 2 गेट हैं, तो आप जिस गेट से एंटर हो रहे हो वो गेट ग्राउंड फ्लोर पे होगा, और जिस गेट से आप एग्जिट होगे, अगर दूसरे गेट से आप एग्जिट होते हो, तो वो गेट कोई बड़ी बात नहीं कि आप फर्स्ट फ्लोर से एग्जिट हो रहे हो और वो आपको ग्राउंड फ्लोर लग रहा है। बहुत ही ऊंचा नीचा बसा हुआ है, राइट, क्योंकि वो पुरानी जगह है, पुराने किले पे बस गया, ऐसा कुछ है। और इत्र की वजह से कन्नौज आज की डेट में हर जगह काफी ज्यादा फेमस है, राइट। एंड हिस्टोरिकल टेम्पल्स है वहां पर, भगवान शिव का स्थान है, देवी भागवत में भी जिक्र है कन्नौज के एक मंदिर का। और कन्नौज का इत्र आज की तारीख में कॉमर्शियल यूज में ज्यादा होता है, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा जाता है, और जो 70% कंजम्पशन है वो टोबैको और पान मसाला इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि हम और आप इत्र की इंपॉर्टेंस को भूल गए हैं, हम और आप एरोमा थेरेपी को भूल गए हैं। जिससे पहले इलाज हुआ करते थे घरों में, वो चाहे कपूर हो, चाहे जो भी हो, लौंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू ऑल ऑफ अस। कभी आप लोगों को इत्र के बारे में जल्दी 5-6 महीने में वो चीजें अच्छी शेयर करूंगा, राइट, होपफुली। एंड तो बस सर, रात में हमने खूब जग करके इत्र बनाए हैं और अभी भी बनते हैं,
कभी आप लोग को सुगंधित करने का मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो मेरा नाम अतुल पुरी है, मेरा पैदाइश बटाला पंजाब की है और मेरा बचपन बीता डलहौजी में, मेरे निहाल वहां पर थे, हैं रादर। तो मैं करीब 2 साल का था जिसमें मुझे एक्जिमा हुआ सर के ऊपर और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जी इसको किसी ठंडी जगह पे ले जाओ, गर्म जगह इसके लिए ठीक नहीं है। और चूंकि मेरा ननिहाल डलहौजी में था तो मम्मी मुझे वहां ले गए एंड शादी से पहले उनकी जॉब थी, उन्होंने वो जॉब वापस ज्वाइन कर ली एंड हिस्ट्री वुड हैव इट that she retired from Himachal government as a teacher. तो मैंने वहीं पर स्कूलिंग की, पहला स्कूल एक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल था, उसके बाद में आई डिड फ्रॉम a school called Himgiri School जो कि which is on a Rudolf Steiner pattern. So Rudolf Steiner is a German educationist who I think in the early 20th century he was there. So this was an alternate education, so that is where I got my foundation. मेरी foundation वहाँ पर तैयार हुई। तो मैंने थोड़ा सा हमेशा ही तिरछा देखा, looked at different aspect of life, वो शायद आज तक मेरे काम आ रही है। एंड मेरी एक सिस्टर है जो मुझसे करीब 2.5 साल छोटी है, मेरा भाई है जो मुझसे 7.5 साल छोटा है एंड अच्छी डिसेंट मेमोरीज हैं। मेरे नाना जी एक दुकान चलाया करते थे वहां पर किताबों की, तो छोटा सा कस्बा है और किताबों वालों के नाम से जाने जाते थे, तो इस चक्कर में कभी कभी किताबें सूंघ लिया करते थे। डलहौजी में? हाँ जी, डलहौजी में। ओके। तो इसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर हो गई एंड आई वुड से जो नींव है वो अच्छी रखी गई। दैट इज समथिंग व्हाट हैज केप्ट मी अपराइट थ्रू आउट। ऐसा चल रहा है। डलहौजी बहुत ही सुंदर जगह है सर, हम गए हैं डलहौजी। बिल्कुल जी। और गए नहीं है, अच्छे से रहे हैं 8-10 दिन, राइट? तो मैं तो 17-18 साल रहा हूँ वहां पर। तो मैंने वहां पर 10-12 फुट तक बर्फ देखी है एंड ज्यादातर टाइम वहां पर पंखे होते ही नहीं थे। अब जाकर पंखे आने शुरू हुए हैं क्योंकि अब गर्मी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई वहां पर। That's about it. अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या करना चाहेंगे? जिनको कुलबुलाहट हो रही है, उन्होंने अभी तक अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, तो मे बी यू कैन शेयर अबाउट योर बिजनेस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी अदर देन बिजनेस उसमें क्या था। नमस्ते कंचन जी, काम ही कर रहे हैं वो, ये संडे को भी है, कोई तरीका नहीं है। आप भी बता दीजिए आपका बचपन कहाँ बीता। हमारा बचपन संजीव जी के साथ बीता है। संजीव जी ये बात ये चल के आए थे शादी करने के लिए मेरे यहाँ। गोंडा आए थे इनके फादर, मैं गोंडा की हूँ। अच्छा। और ये बिल्कुल मेरे घर के सामने थे। अच्छा। तो इन्होंने आपको प्रपोज किया या आपने इनको प्रपोज किया? अब तो ये तो अभी बहुत लंबी कहानी है, पूरी नॉवल लिखी जा सकती है इस पे। तो कोई बात नहीं, तो नॉवल का भी प्रीएम्बल तो होता ही है। बस वही मुलाकात हुई कि मदर फादर बहुत लाइक करते थे मेरे को। बट ये जैसे ही आए मर्चेंट नेवी से वहां पर, तो इनकी मदर ने बगैर बताए मेरी मीटिंग इनसे करा दी थी। अच्छा। और बस ये भी मिलने के बाद कुछ सोच गए थे कि इसको पेन फ्रेंड तो बना ही लेना है। फिर वो पेन फ्रेंड तो नहीं बनी, बीवी बन के आ गई। ठीक है। और इनके आने से पहले क्या चल रहा था आपकी लाइफ में? हाँ, that was I have done MA and B.Ed. तो वहीं गोंडा से ही किया था। अच्छा। तो वो लायंस क्लब वगैरह में हम लोग जाते थे, मेरे ब्रदर वगैरह थे, मेंबर थे वहाँ के। अच्छा। तो टीचिंग लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, ट्यूशंस वगैरह ले लेती थी घर में।
तो that was a very big exposure. और I am a single sister, मैं अकेली बहन हूँ, 3 भाई हैं मेरे. वाओ, तो बहुत ही My father loved me, मतलब. और फादर क्या करते थे? मेरे फादर बिजनेसमैन थे. किस चीज का? वेरी गुड बिजनेसमैन. 3-4 शॉप्स थी, 4-5 शॉप्स थी. एवरीबॉडी नोज, अगर गोंडा चले जाओ तो बोलो कि दयाल साहब के यहाँ जाना है, तो रिक्शे वाला आपको हमारे घर तक ले आता था. ये छोटे शहरों की ये खास बात है. Yes, right. Fantastic. और बताएं. मजा. थैंक यू. प्लेजर. तो अब लेट अस हैव, अभी हम 10:25 पर हैं. आप चाहें तो हम इस कॉल को कंटिन्यू कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद कि जी क्या खुराफत सूझी आपको अपना बिजनेस शुरू करने की? अतुल, मैं बच गया. हाँ जी, आप बच गए हो. सॉरी अतुल, बचे नहीं. मैं बच गया भैया. दी थी आपने, बहुत कम बोला. बोलिए. अरे भैया, क्या प्रॉब्लम हुआ है इसमें? बिल्डिंग के टेरेस में आ गया. अच्छा. ताकि वाइफ सुन चालू करूं मेरी स्टोरी? हाँ, प्लीज. नहीं, मेरी स्टोरी ऐसी मैं घर में बता नहीं सकता हूँ 20 बच्चों के सामने. समझ गया. हाँ जी, बताइए. मेरा बचपन तो बॉम्बे में विले पार्ले में गुजरा. और धर्मिष्ठा के जो पुराने पड़ोसी थे ना, मेरे पड़ोसी थे. अच्छा. और मुझे सुबह में जब भी मैं 2-3 साल का था, तो मेरे को साबुन लगा के दाढ़ी किया करते थे. जब भी मैं स्कूल में गया तो हरे रंग का गोल सा वाला साबुन ना? हाँ, बराबर. लाइफ बॉय, तभी आई थिंक लाइफ बॉय था. लाइफ बॉय. अच्छा. अभी स्कूल में गया तो क्या होता था कि मोस्टली महीने में 2 बार मेरी मम्मी जब भी कपड़े धोने को बैठती थी ना, तभी बोलता था कि भाई मम्मी को स्कूल में प्रिंसिपल टीचर ने बुलाया है. क्या वो तो नोटिस पर्सन इन द स्कूल भैया. ओके. तो कोई मैं संभाल नहीं लेता था भैया. तो मम्मी स्कूल में आती थी, डांट खाती थी. ये स्टोरी आगे चली. जब भी हमारा होता था स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी. हाँ जी. तो स्कूल में जो होता है ना वो फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम. तो मैं तो बेसिकली स्कूल में साइंस की क्लास में सीखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव जमा होते हैं ना वायर में, तो फ्यूज उड़ जाती है. तो हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक के रूम में जाते, कोई भी स्कूल के रूम में जाते थे, एक बड़ा वायर लेते थे, एक को लगाते थे पॉजिटिव में, एक को लगाते थे नेगेटिव में, और स्विच चालू कर देते थे. तो पूरी स्कूल की लाइट चली जाती थी. तो प्रोग्राम होता ही नहीं था. ये 4 से 5 साल चला. अच्छा. और जब भी हम लोग 9वीं क्लास में आए, तो क्लास में जो होता है ना वो टीचर के ऊपर का फैन के ऊपर झाड़ के पत्ते लगा के रख देते थे. तो टीचर जब भी आती थी तभी पंखा बंद रहता था. टीचर को गर्मी लगी, बोले पंखा चालू करो. पंखा चालू किया तो उसके ऊपर पूरी बारिश होती थी. बारिश होती थी पत्तों की. जब ये 9वीं में आए तब ने क्या किया कि स्कूल के जितने भी सारे बेंचेस थे ना, लास्ट दिन हमारा क्या बोलता है वो सेंड ऑफ डे था एसएससी का. तो पूरा क्लास खाली कर दिया. हमारी क्लास पहले माले पे थी. तो स्कूल के बारी में कोई ग्रिल नहीं लगी थी. ये बात करता हूँ 1974 की बात करता हूँ. ओके. तो सभी स्कूल का पूरा क्लास का फर्नीचर हमने उठा के बाहर फेंक दिया कंप्लीट. अच्छा. ये स्टोरी चली कॉलेज में. तो कॉलेज में मेरा नाम नवीन मेहता था. अच्छा. कॉलेज में भी इतना मस्ती करता था. तो कभी कभी प्रिंसिपल घूमने को निकलता था, मिस्टर यूआर कॉली, एनएम कॉलेज बॉम्बे में. तो बोला कौन? तो ये नवीन मेहता. कौन से क्लास से है? तो मेरा क्लास था E119. मेरे को अभी भी याद है. ये मैटर 1975 की बात है, 76 की बात है. अच्छा. एक काम कर, कल तेरे पिताजी को मम्मी को लेके आ. तो मैं तो अकेला हूँ, भाई बहन कोई नहीं है. तो बाजू वाला बिपिन को मैं बड़ा भाई बना के लेके गया कॉलेज में. उसको बोला भाई तू मुझे ठोक देना टीचर के सामने. उसने मुझे लिटरली ठोक दिया. मैंने उसको आके मारा. फिर साला इतना जोर से क्यों मारा? मेरे गाल लाल हो गए मेरे. तो इतनी मस्ती होती थी भैया. तो अभी भी मेरे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड याद करते हैं, नवीन के है ना. और मेरा नाम हो गया E119. कम से कम कॉलेज में 4 साल में मेरे को घर वाले को 5-6 बार बुलाया भैया. अब तो नोटिस पर्सन ये दिन वापस नहीं मिले अभी तक. वापस नहीं आए अभी. Thank you for bringing those things again in my life. Thanks to you all. All the dozens. I think अभी हम डजन लोग हैं सिवा. तो thank you for taking time. बच्चे के सामने बात करूँ
तो बच्चे को मैं डांटते रहता हूँ ना, फॉर बीइंग स्ट्रेट। मैं बोला बिल्डिंग के टेरेस में आता हूँ, बैठ के बात करता हूँ। ठीक है, चलो ग्रेट है, ऑसम, थैंक यू, ग्रेट है जी। सो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक हम ये रखते हैं कि अभी हम 10:30 तक पहुंच गए हैं, मे बी अनदर 5-7 मिनट्स अगर आप ये शेयर कर सकें कि जी आपका क्या बिजनेस है एंड व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन ऑफ गेटिंग इनटू दैट बिजनेस। दिस विल बी अ क्विक कॉल। मैं चालू करूं? हाँ करो करो प्लीज। हेलो। हाँ जी करो। मेरा क्या था कि मेरे को पहले से अंदर से घुसने की आदत थी ना। हाँ। मेरा काम था रिसर्च का, स्टडी करने का था। और जब भी मैं छोटा 5 साल का था ना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब भी मैं छोटा 5 साल का था तभी मैं 5वें माले से 4थे माले पे गिर गया था, मेरा बच गया था। ओके। आई वाज अनकॉन्शियस फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स। अच्छा। तो आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द 1.5 month। ओके। देन माय एज वाज 5 years। अच्छा। अभी मुझे काफी सारी बुक्स लाके देके गई थी ना पढ़ने के लिए। हाँ। जब व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल। ओके। तब से मेरे को स्टडी का काफी इंटरेस्ट हो गया, तो कोई भी सब्जेक्ट में जाता हूँ तो मैं अंदर चला जाता हूँ पूरा कंप्लीटली, तो मजा आती है। तो उसके बाद से मैंने ये क्लेम सेटलमेंट रिसर्च का काम सब चालू किया। ऑलराइट। तो कोई भी सब्जेक्ट हाथ में लेता हूँ मैं पूरा अंदर चला जाता हूँ। ग्रेट। अभी कुछ परफेक्ट, थैंक यू। दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर आई विल शेयर विद समथिंग वेरी बिग। नतुल एक चालू किया है लॉकडाउन में, हो गया पूरा। ओके ग्रेट। ये आपको बताऊंगा अगले हफ्ते में। ठीक है, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। शिवम भाई आपने हाथ उठाया, बताएंगे आप क्या? हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। पॉइंट ये है कि आपने पूछा कि क्या चीज किक ऑफ करी जिससे कि आप लोग बिजनेस में अपने इंस्पिरेशन क्या रहा। राइट। इंस्पिरेशन मेरे आज की तारीख में आई एम रनिंग 2 बिजनेस, तो दोनों के अंदर मेरा इंस्पिरेशन है। सबसे पहली चीज, जब मैंने जॉब अपना क्विट करा तो वो प्लान्ड वे में क्विट करा। आई वाज वर्किंग विद IBM, आई वर्क विद वॉलमार्ट, तो जॉब में वो किक मुझे मिल नहीं रहा था अपनी लाइफ के अंदर। सो आई स्विच टू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो नौकरी के साथ में मैं करता रहा काफी समय तक। और अभी हमने जो स्टार्टअप प्रारंभ करा है वो वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड है, 1.5 साल तक उसको मार्केट स्टडी करने के बाद, राइट। और अभी आप सबको हम उसके लिए सर्विसेज देने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट यू विल फील आफ्टर कोरोना, दैट इज माय गारंटी टू यू। आपको बहुत जबरदस्त इसके अंदर मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ में जो दूसरा बिजनेस है उसमें क्या रहा वो मैं शेयर करूंगा। आई वाज फीलिंग वेरी मच लो। अस्थमा का मैं पेशेंट था, 2-2.5 साल से मैं रेगुलर पंप ले रहा था। आई जस्ट ओनली चेंज्ड माय वाटर। मैंने अपना केवल पानी बदला है और कुछ नहीं करा, ना कोई दवाई वगैरह। दवाई पहले खाता था, और पानी बदलने के बाद में अब मैं 2 महीने से कोई मेडिसिन पे नहीं हूँ, 3 महीने से। आई हैव जस्ट चेंज माय वाटर। अब मैंने उस वाटर का ही बिजनेस शुरू कर दिया है, बिकॉज ने मेरी लाइफ को, मेरी मदर की लाइफ को चेंज करा है पूरी तरीके से। क्योंकि हम एक फ्लोर चढ़, इट्स नॉट ओनली एल्कलाइन वाटर, इट्स इनकरेक्ट वर्ड। ये तो एक मास का वर्ड है, क्योंकि इट्स बेसिकली माइक्रो क्लस्टर्ड आयनाइज्ड एल्कलाइन वाटर, राइट। एंड इसने पूरा चेंज करा है। अब मैं 3 फ्लोर 4 फ्लोर रनिंग वनिंग, वापस एक्सरसाइज वगैरह, जिमिंग दोबारा शुरू हो गई है लाइफ में। एंड 2 साल पहले से ही बुरा फील कर रहा था, तो वो उसने मुझे किक दिया जिसको मैं लोगों को बिना बताए अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, राइट। और साथ में जो हमारा लॉन्ड्री सॉल्यूशन है उसके अंदर भी दमखम बढ़ गया है हमारा आगे बढ़ने के लिए, जो अतुल जी फील कर रहे होंगे मेरे मैसेजेस के माध्यम से, राइट। ग्रेट है जी, थैंक यू, वेलकम। सिंगला साहब। हाँ जी सिंगला साहब। गोबर व्हाट आई वांट टू से कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज है या कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पाते, बट देयर आर लॉट ऑफ स्पेयर कैपेसिटीज अवेलेबल अराउंड द कंट्री और आउटसाइड, जो हम अगर नॉलेज ना होने की वजह से कर नहीं पाते। जैसे मैं इतना ट्रेवल करता हूँ तो देखता हूँ लोगों के पास, कई लोग ऐसे हैं 8 घंटे की शिफ्ट चला के उसको 16 घंटे यूज नहीं करते। बहुत सी एक्सपेंसिव इंडस्ट्रीज, एक्सपेंसिव मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि स्पेयर कैपेसिटी कर सकती हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे
हमारे यहाँ पे इंडिया में एक चीज जो मैंने नजर आई है, कमी है मैपिंग की। जैसे मैं पोल्ट्री फार्मिंग में हूँ, एक जगह पे तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है पोल्ट्री, एक जगह है ही नहीं है। तो जब भी आप कोई बिजनेस करने लगो, उसकी स्टेट में सबसे पहले ये देखो कि उसकी कितनी पॉपुलेशन है और कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी क्या है, जैसे हम पंचकुला में है, पंचकुला में 3 से 4 करोड़ पोल्ट्री है, विच इज नॉट डिजायर्ड हियर। तो जैसे होता है ना कि भेड़ चाल है इंडिया में, जिस तरफ लग गए तो लग गए। तो ऐसे ही नमक्कल है हैदराबाद, वहां लग गई पोल्ट्री। तो ऐसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ना तो कंजम्पशन की कमी है, ना प्रोडक्शन की है, बट प्रॉब्लम इज मैपिंग नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हमारी जो फेलियर हो रही है। अब जैसे कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल है, एक जगह तो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, एक जगह हो ही नहीं रही है। जहाँ क्लाइमेट अच्छा है, बन सकती है। तो इसलिए माय सजेशन है कि अगर जैसे कोई बंदा कुछ करना चाहे, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, प्रोडक्ट है उसके ऊपर, तो मैं स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल जो है अरेंज करवा सकता हूँ इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जितना हमारा मैन्योर है, वेस्ट है, इन चीजों से हमें फर्टिलाइजर्स बना के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करनी चाहिए। वी शुड नॉट गो फॉर दिस केमिकल थिंग्स जो हमारी फाइनली हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ये मेरा सिस्टम है और मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर काम। तो इसकी आपका इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन ये है कि जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बीमारियां लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? हमारा जो खाने पीने का सिस्टम है ना, वहीं से शुरू होता है। तो अगर उसको हम इम्प्रूव कर दें, सपोज हम जो सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, विदाउट पेस्टिसाइड वाला खाएंगे, तो ये सारा सर्कल ही ठीक हो जाएगा। अब सॉरी टू से कि हमारा जो है एग जो है, अंडा जो है, या कोई और चीजें एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती बिकॉज वी यूज पेस्टिसाइड। तो माय पॉइंट इज we should advise more and more people not to use these pesticides. They should use organic fertilizers. तो तभी प्रोड्यूस हो पाएंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सस्ती भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जापान में मैं जाता रहता हूँ, तो वहां पे हर एक पोल्ट्री फार्मर को एक पैरेलल इंडस्ट्री लगानी पड़ती है फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है, उसकी इतनी डिमांड है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड, तो उसी से वो सारी चीजें जो है अपनी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे? तो ये जो है थोड़ी सी मैं समझता हूँ there is a lot of lacking in this field which needs to be educated. So fantastic. And secondly, for example, you have a product in mind which needs about 10 to 20 CR a capital to buy the machines. People like me who have traveled here and there, they know the technology and they can get you the technology without any cost. That is spare capacity availability. Both purposes are solved. जिसके पास स्पेयर है उसका भी काम हो गया और जिसको चाहिए उसका भी हो गया। I give you the example. अब जैसे एक you have seen about जैसे कोई हम चीज ले लें, फॉर एग्जांपल कोल्ड चेन है। इंडिया में कोल्ड चेन्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कोल्ड चेन्स ना होने की वजह से वी आर लूजिंग फूड अबाउट close to 100,000 crores every year. Close to 100,000. अगर वो चीज हम मैपिंग के हिसाब से बनाया जाए, ना कि विदाउट मैपिंग, तो बहुत बढ़िया बन सकता है। और इतनी हमारे पास कैपेसिटीज अवेलेबल है। Only thing point well taken, Singla ji. So my suggestion to you would be, rather one of the options can be, how about you sponsoring one of the sessions on CEO calls one day, so that people can get to look at this aspect, and some of them can reach out to you to make use of the spare capacity. Yes, it is possible. ठीक है जी? Yes, it is possible. तो इसका फिर हम one on one एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है ना जी? हाँ, one on one कर लेते हैं बात। Alright. तो इसके लिए तो मतलब I have a suggestion also. We can talk one on one how this can be done.
ओके डन। बल्कि बहुत इजीली इसको हम ई ग्रोथ में कर सकते हैं। राइट, फैंटास्टिक, थैंक यू। भुवनेश भाई। हाँ जी। हाँ जी। So what was your inspiration of getting into the business? मुझे तो एक्चुअली जो मैंने बताया कि मेरा स्कूलिंग बहुत सारे अलग अलग जगह पे हुआ है। हाँ जी। तो आई नेवर हैड ए चाइल्डहुड फ्रेंड एक्चुअली। वाओ। तो वो मुझे बहुत अखरता था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस ही करूंगा, सो दैट माय किड्स हैव अ चाइल्डहुड फ्रेंड। आई विल स्टे एट ओनली वन प्लेस। अच्छा। तो पक्का तो था कि मैं बिजनेस ही करूंगा, मगर घर पे किसी ने किया नहीं था, सब जॉब ही कर रहे, रिश्तेदार वगैरह सब। तो एमबीए करना था मगर पैसे नहीं थे। अच्छा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत जॉब तो ले ली। फिर एनटीपीसी में अप्लाई किया, मैनेजमेंट ट्रेनी बना, मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिया। फिर इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में और एडमिशन मिला नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल कर लिया था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज चाहिए तो क्या करें, तो एलडी कॉलेज में ही जॉब ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज लेने के लिए। ऐसे करके फिर कंप्यूटर का नॉलेज लेने के लिए एक कंपनी में जॉब ले लिया, इंटरनेशनल डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि अब एचसीएल ने टेक ओवर कर लिया था बाद में। अच्छा। तो वहां पे कंप्यूटर का नॉलेज लेके फिर बिजनेस शुरू किया 91 में। Fantastic. और बाद में वो सॉल्यूशंस ट्रेडिंग करते थे और धीरे धीरे कस्टमर्स की डिमांड आई कि हमको ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए, काफी ढूंढा, नहीं मिला, तो खुद ही मैन्युफैक्चरर बन गए। बस इसी हिसाब से चलता रहा पूरा। ग्रेट है जी। दोनों बेटे काफी बड़े हो गए, मतलब बड़ा बेटा मुंबई में है, ही इज वर्किंग फॉर एशियन पेंट्स, एंड छोटा बेटा अभी यूएस है, ही इज डूइंग अ जॉब देयर इन यूएस। यूएस में किस जगह पे है? He is in Detroit, near Detroit, I would say, and he got his H1 recently. Okay. So now he is not going to come back. Okay, he is going to stay there. Yeah. So there's a friend of mine who's again close to Detroit, and he works with Amazon. In case you want, we can get them connected. Oh, sure, definitely. Yeah. ठीक है जी। जतिन भाई। जतिन। मनीष कुमार। सर मैं हूं यहीं पे, अनम्यूट तो कर दो। तो अनम्यूट आप करो ना। चलो ठीक है, हो गया। सॉरी। हाँ जी सर, अनम्यूट म्यूट आपने किया हुआ था। ठीक है, फेयर इनफ। चलो सर देखो, मेरा बेसिकली इनिशियली आई वाज इन्वॉल्वड इन जॉब्स। मैं हमेशा से जॉब मेरा, आई स्टार्टेड माय करियर विद अ गवर्नमेंट जॉब। आई जॉइंड मलेरिया रिसर्च सेंटर एज अ ग्राफिक डिजाइनर। Okay. That was a pure government job, but I quit that job. Basically why? क्योंकि उन दिनों I believe गवर्नमेंट जॉब्स में एक बेसिक माइंडसेट होता था कि भैया तो काम नहीं करना है, and when I started my career, people also teaching me there how not to do your work. Wow. हाँ, exactly. I was 18 there. मेरे जो subordinates थे वो 40-40 साल के थे। हम लोग काम कर रहे होते थे तो आके अब उनको टेंशन ये होती थी कि यार तुम काम करोगे तो हमें भी करना पड़ेगा, तो you should not do anything. So that was very depressing. Practically I worked there for 2 years, then I'll quit that job. जनरली सरकारी नौकरी कोई छोड़ता नहीं है, मैंने छोड़ दी। बेसिक रीजन क्या, सारी उम्र में चेतक नहीं चलाना चाह रहा था। मेरा बेसिक रीजन ये था जॉब छोड़ने का। देन मैंने ज्वाइन किया पूना। आई वेंट टू पुणे, आई वर्कड देयर, आई जॉइंड दैट कंपनी एज अ 3D एनिमेटर। There we did research on Indian cookery because we've been working on a title called Pleasure of Indian Cooking. वहाँ पे I did a Indian research on Indian food for about 2 odd years. वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मैंने कुकिंग वहाँ पे सीखी, वहाँ पे रह के, since I was alone there. So वहाँ पे we have learned हड़प्पन एरा में क्या बनता था, दुर्योधन को क्या डिश फेवरेट थी, सीता जी की डिश क्या डिशेस फेवरेट्स थी, तो वो सब चीजें हम लोगों ने सीखी वहाँ पे। Then I came back to Delhi. Since I was a person, मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ इनोवेशन चाहिए थी, मुझे कुछ मेरे से खाली नहीं बैठा जाता था। Even during my school days, गर्मियों में सब
अगर सो रहे हैं छुट्टियों वाले दिन तो मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था. आई वाज अ इनोवेटिव पर्सन. कुछ ना कुछ बनाना है मुझे. आई कैन नॉट. थोड़ा सा फास्ट करेंगे कन्वर्सेशन को, नहीं तो लंबी खिंच जाएगी. Done. Okay. I came back to Delhi. I joined again. I joined company into events. Then मेरी जो second job मैंने काफी लंबा stick किया. I worked there quite a lot. One fine day मेरा जो boss था, he said कि यार कुछ गलत बोल दिया उसने मेरे साथ. I quit my job. अब यहाँ पे this was my turning point कि I realized नहीं यार ये जनता तो गलत बोलती रहेगी और मैं नौकरी छोड़ता रहूंगा. That doesn't make sense. Let's start something of my own. So I started my business here. Initially वही exhibitions and events मैंने शुरू किया. अभी practically 4 verticals हैं मेरे पास, जिसमें हम लोग events कर रहे हैं, exhibition stall design कर रहे हैं, and in-house fabrication unit है मेरे पास. My wife also joined me. She's taking care of our travel vertical, which is like we do everything, inbound, outbound, सब करते हैं उसमें हम लोग. Then we do commercial interiors. ये more or less 4 verticals हैं हमारे पास. Except of commercial interiors, हम लोग इसके terminology use करते हैं. We are into MICE, meetings, incentive tours, conferences, events and exhibitions. Right. So the question was, what was the inspiration? You answered that. Let's move on. ठीक है जी? The inspiration was, as I already said, कि वो बार-बार job change करना, किसी को के ego satisfy करना wasn't my ball of game. So I started my own setup. Fantastic. Thank you जी. Manish जी, Manish Kumar. Yeah. Hi. Good morning. हाँ जी. And as you know, I am chartered accountant. तो जब मैंने डिग्री लिया सीए का तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कुछ और करूं, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया सीए का प्रैक्टिस. ओके. एक चीज और, आपने अभी जस्ट रिसेंटली ये वीडियोस की सीरीज शुरू की है, एंड आपकी जो वीडियोस की सीरीज है, आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी 500 क्रॉस कर चुका है, 500 के सब्सक्रिप्शन. तो ऐसा आपने उसमें क्या किया और आपकी क्या इंस्पिरेशन थी उसको शुरू करने की? तो YouTube चैनल शुरुआत करने का क्या था कि लास्ट ईयर एक्चुअली आई हैड द कैटरेक्ट ऑपरेशन. तो उस टाइम जैसे आप लोग आज 15-20 दिन 25 दिन घर के अंदर बैठे हुए, तो कैटरेक्ट में मैं भी करीब 20 दिन घर के अंदर बैठा हुआ था. इवन आई कैन नॉट वॉच टीवी, आई कैन नॉट ऑपरेट लैपटॉप. तो उस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि जो मेरे क्लाइंट है, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो या एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, वो मेरे से इंटरेक्ट रहे. तो उसी टाइम आई हैव स्टार्टेड वन पेज फ्लायर स्टार्ट किया टू गिव द इंफॉर्मेशन लाइक इनकम टैक्स का क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, जीएसटी का क्या हो सकता है. जब मैं बेड रेस्ट पर था कैटरेक्स में, तो वो 1 पेज फ्लायर शुरुआत किया. धीरे धीरे वो फिर 1 महीना 2 महीना के बाद लगा कि नो, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 पेज फ्लायर से वीडियो पर आना चाहिए. तो फिर मैंने वीडियो पर स्टार्ट किया, और ये जो वीडियो है इसमें 3 टॉपिक कवर करते हैं. पहला इनकम टैक्स, दूसरा जीएसटी, एंड थर्ड जो है बिजनेस टिप्स, कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो एक्सेट्रा. और इसी के साथ अभी लॉकडाउन में जो, जैसा अतुल जी आपने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है कि एवरी डे यू आर गिविंग द 1 hour टू ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फैक्ट. तो मैंने कि सबसे ज्यादा हमारे पास लिक्विडिटी रहे. तो ये लिक्विडिटी एक तो है कि हमारे बैंक में दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने पास्ट में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, रियल एस्टेट में हो, या फिर आपका शेयर में हो, म्यूचुअल फंड में हो, तो वो पास्ट इन्वेस्टमेंट आप एक बार ऑडिट करा लो. व्हाट इज द करंट सिनेरियो, वो कितना वैल्यू जा रहा है, और वहां से भी आप अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हो. जस्ट आई टेक द वन एग्जांपल, जो रियल एस्टेट आज से 5 साल पहले जो वैल्यू था, इसके डिटेल में बाद में आएंगे. वो आपने मनीष जी इसकी डिटेल में बाद में आएंगे. आपने आंसर बहुत, इट्स अ वेरी टचिंग थिंग कि जी, बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट यू गॉट ग्राउंडेड, एंड व्हाइल यू वर ग्राउंडेड, दैट वाज द टाइम व्हेन यू लुक्ड एट व्हाट एल्स इज पॉसिबल इन लाइफ. अमेजिंग, थैंक यू. मिथिलेश जी. सर मैं टाटा में नौकरी करता था,
और मुझे नौकरी वैसे बाय नेचर कभी पसंद आया नहीं। बचपन से ही मैं नहीं करता रहा, तो दिमाग में शुरू से था कि कुछ ना कुछ। वैसे मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया नहीं है, पहला आदमी हूँ जो मैं अपने परिवार में बिजनेस कर रहा हूँ। और दूसरा जो सबसे मेजर चीज था, मुझे एक चीज में इंटरेस्ट होता है लोगों के जॉब क्रिएशन में। एक्चुअली मैं बिहार के से बिलोंग करता हूँ, तो गरीबी और बेरोजगारी बहुत देखा है। बहुत लोग वहां से भाग के आते हैं दिल्ली या मुंबई, या जो ये काफी फेनोमेनन, काफी सब लोग जानते ही हैं। तो इस चीज से काफी रिलेट से करते रहे हैं शुरू से ही, कि अगर उन लोगों को जॉब क्रिएट किया जाए तो ढेर सारे लोगों के परिवार को फायदा होगा। तो एक तो जॉब करना नहीं चाहते थे, और दूसरा ये था कि किस तरह से लोगों को जॉब क्रिएट किया जाए जो ढेर सारे लोगों को फायदा। मेरे बिजनेस में आने का सबसे मेजर रीजन यही था कि मुझे चाहिए था कि कितना जॉब हम क्रिएट कर सकें, किस तरीके से क्रिएट कर सकें। और ये वन ऑफ द मेजर रीजन आज भी दिमाग में वो रहता है कि क्या ऐसा किया जाए कि जॉब क्रिएट हो, अदर देन अपना बिजनेस। अपना बिजनेस तो है कि हम खुद स्टेबल होंगे तभी तो किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मेरा रीजन ये है। थैंक यू। राजेश जी। Yep. I am currently a consultant in the industrial air conditioning and natural ventilation field. Natural ventilation is a very passionate subject. In fact, in recent times when we're going to get back to work, the need to consume less energy or no energy in ventilating your buildings. And I'm part of a group called ISHRE, which is the Indian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning. We recently had a webinar that after COVID, industries were asking, what do we need to do to see if we turn on our air conditioning, if we start our factories, what are the things we need to look at? Ventilation in any building will become extremely important because it is also said that it is likely to be airborne. That if somebody sneezes and you're in a closed space, in an industry shed also. So if it is airborne, in addition to it being on the surface, you can catch it. So ventilation is going to be a very important thing in most industries. And I specialize in a subject which is natural form of ventilation. There are two kinds. एक आपने देखा होगा वो लट्टू घूम रहे होते हैं factory shed के ऊपर. That's called turbo ventilators. They drive on wind. But wind 12 महीने नहीं चलती है. So I have specialized in a technology which I've perfected to see that without wind, how the building geometry, the height of the building, the heat inside the building, how that can create a natural form of ventilation. So I am one of the few people in the country who specialize in this subject, and I give this service now to the industry. And I'm looking at spreading this more and more because it'll save energy. It's zero energy actually. No energy, no maintenance, and factory sheds can be rightly ventilated. So आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इसमें जाने की? You see, I've been a person who's been close to nature. And anything which the nature can provide you, which you don't need to recreate yourself. And I've been like Jim Corbett Park gaya. You see so much of energy there around in nature. So buildings can be designed to take best effect of nature. How you orient your buildings. So I have had this passion to stay in touch with nature, and this was an excellent thing which came my way. And I specialized that in my last company where I worked. And I have softwares which I can design this. So it's essentially the contact with nature and using the best of nature because it's abundance. You can keep extracting from nature. There is still enough left for you to use nature. So that's my motivation. All right. Thank you. Srividya? I'm trying to unmute her, not able to do it. Srividya?
Oh, hello. Okay. So inspiration, like it started with a very different thought pattern. मुझे किसी I didn't want a boss in my life, right? I don't wanted to work under anybody. मुझे किसी के ऐसे हुक्म के अंडर में काम नहीं करना. So I started my journey. I still have a courier company. I own a courier company. I have a travel agency. I have a film production, and I'm now into alternate therapies. Everything started with how can I do something better and something different that where can I solve people's problems. Just in film industry, there was a lot of problems happening in the production field. So I became a line producer. I started working as a line producer there, and I did a lot of work uh, creating different ads. And wherever I was working, I would try and make maximum benefits for my producer. So there, it was like freelancing. So Midas Touch was my company. Now it's called Miracle Zone. Then wahan se, there's the main inspiration coming into spiritual line was. My mom had diabetes, so I wanted to find out how to heal her without all these medicines. I would not like her eating medicines and all that. So being in the film industry itself, I would try and find out how to heal and how to do all this. वहाँ से मैं कहीं connect हो गई, and then last 7 years I'm into healing, alternate therapies, and I work on this front. And I'm also an Nalanda University certified counselor, and I used to be very angry. So for many things, तो मुझे anger management का मैंने course किया था to teach people how not to be angry, and now मुझे किसी चीज पे गुस्सा नहीं आता. Awesome. चलो, thank you. So अब अगर आपकी permission हो तो मैं अपने बारे में बता दूं. Right. So yes, please go ahead. I'm somebody who became an engineer in 1996, and for around 20 odd years I was in the government space. My second job was a government job. I used to work with CDAC, and later on changed various jobs. Sometime in 2014, I used to work with an MNC, United Technologies Corporation, which is a Fortune 49 company. And that is where I was in this experience कि मैं तो एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे महीने के एंड में तनख्वाह मिल जाती है. And there are millions of small businesses out there who need to make their ends meet. They put their life and their wife on stake and are yet not able to thrive. And they may be able to survive, but not able to thrive in their business. So what is it that I can do such that I am a part of their success story? So this is where the piece started, and I started spending time with small businesses. जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ. During the day, I would do my 9 to 5 job. In the evening, I would go and sit with some business owners, check with them, what can I do for you? इस तरीके से, and I also conducted a survey. What are the key pain areas of a business owner? तो तीन चीजें निकल कर आई. Resource management, which is business operations. Opportunity mapping, which is business development. And the third is innovation. इन तीनों चीजों को मिलाकर एक वर्कशॉप कंडक्ट किए जिसका नाम था E-Growth at Biz, which is exponential growth in business. This was in November 2014. At the end of that workshop, I realized that this is not a one workshop job. There's a complete life to it. This is where E-Growth was born. And this is when I took a call that I will not be working for somebody anymore. And I did not have the courage. So it was only in 2015 that I quit UTC. Yet I did not start on my own. I joined a startup. I was with a startup called Gaadi Fix for another 18 months. And it was only in January 2017 that I hung my boots and started E-Growth.
So this was a little bit about how I got into entrepreneurship. And thanks for listening. Thanks for being on the call. Waiting for another lazy Sunday. Haji. So I think we're done with the call. Maybe we can spend a minute or two if you have any remarks to give. I have unmuted all of you. You want to give any last remarks? We can just Thanks a lot, Atul, for this lovely platform. It's good to hear what people have gone through. I enjoyed the upbringing of the childhood which you brought about as a subject. That got us in touch with our inner self, and we become too mature as life passes on. So thanks for opening up that new horizon. So I'm going to leave now because there's another webinar at 11 I have to attend. Done. So we're looking forward to listen to you this Thursday. And, Tuesday, 21st. 21st, fair enough. Yeah, 21st, yeah. Okay. So we are looking forward to get power from within. Yes, I'm looking forward. In fact, thanks to you to prod me. That's my first webinar I'm giving, and ever in my life. And actually, I'm going to be sharing about what I've learned in the way of my life and how I've applied that in my life successfully. And it's just opening out me to all of you on Tuesday morning. Amazing. And see what I'm sure it is going to be as engaging as anything can be. Yes. Thank you. All right. See you. Take care. God bless. Okay. Thank you. Bye. Yeah, bye. Thank you. Yeah, bye. Anybody else wants to say something? Okay, Atulji, thank you very much. So we can keep in touch. Definitely, Ji. Okay. Can I have your number, or I write my number? You must be having my number. Yeah, I'm sure I would have. You can put your number in the chat box. So my number is 9899 11 Okay. 054. Just a minute. 9899 11 11 6054. 6054. You're in Delhi, right? Yes, I'm in Delhi. Gurgaon. Okay, Mr. Atul Puri. Yep. Just want to say thank you very much, everybody, for your precious time. And this morning, we had a great session. Thanks, Atul, for joining us together. My pleasure. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you. Bye. Good.